The answer for this is 1 by 3, is it? So basically your function is 1 by 3, 1 by 3 dx. I need to check why it is taking 0.5 to 1. According to me, it should be from 0 to 1. I'll check it across again. It's saying, in the question it is saying that probability of x less than equal to 1 we need to find, and it follows the uniform distribution. Okay, so the range will be, okay, right. So why is it half to 1? Yeah, I'm just like checking that only because according to me it should be 0 to 1, but why Ah, is it half to 1? If you give me a minute, I'll I just, think they are taking the integral b to a to b. So yeah, between I was just, 0 I to was also 1, in that impression only. yeah, between 0 and 1, I mean, the only values we can take it 0.5 and 1. That's why I think they are. Yes, correct. So since our, see, I'll tell you exactly that Monica told. Our range is starting from zero point 0.5 to 3.5, right? And it is asked that we need to find x less than equal to 1. So it will start from zero point 0.5 only, right? Because we know in uniform distribution, I'll scroll up and I'll show it to you. In uniform, we learned that anything other than this range is 0. Check it, right? So if anything that is lying outside the, like, less than a, and anything lying outside b, it will be considered as 0. That's why we are taking the lower bound as 0 0.5 and the upper bound as 1, because it is given into the question that it should be less than equal to 1, right? I guess Kalpit was asking this. got it. I was thinking it's 0 to 1 because it's less than equal to 1. Yeah, actually, if you see, if you do it from 0 to 1, basically what will you do it like? See, if you're starting with 0, so from 0 Hmm, to 0 0.5, we have 0. Yeah, but the Our interval range. will not satisfy, no? correct. Correct. Interval If, will not yeah, satisfy. so basically we are adding 0 to something that is equivalent to nothing. That's why. So Got it, got it. integrating 0 to us, so it will be x by 3, and what it will be? Yeah. I guess I need to buy a new trackpad. So it's going to Yes. be 1 minus zero point 0.5 upon 3. Correct. 1 minus zero point 0.5 upon B 3. minus That A is zero point upon 0.5 by. 3, right? Right. So it will be, Zero point 0.5 what by will 3 and it it's will going be, to I be guess, by 0.5 is 1 by 2, so 1 by correct? 6. Uh, Correct. correct. I guess the people who had doubt in question number 9, it is cleared, right? Okay. I assume Yeah, yeah. everyone is clear with this. Yeah, yeah. Yeah, Let's move let's forward. move forward. Yeah. So first question, who people had doubt again? Do we have anyone here who had doubt in 10th question? Because I saw the name, but I do not have phone. Anyways, I'll go theoretically and I'll explain you. So basically, it's asked that suppose that the life length of a, let's copy from here and paste it here. Okay, perfect. So it does suppose that the life length of an electronic device, say D1 and D2, have a normal distribution with mean 40 and variance 30, mean 40 45 and variance 36 9. So basically for D1 we have mean as 40 and sigma as 36. So can I write it 6? Is it right to is it correct to write 6? Because variance is sigma square. So Yeah. sigma square is equal to 36. So sigma equal to 6. Right? And again, D2 follows sigma equal to 45 and this as 9. So 9 will be basically 3. Correct? If I'm not wrong, am I going Yes. right? Yes. Okay, perfect. So let's move forward. So it's saying that if a device is to be used for 45 hours, so what it has been asked, 45 means X should, something should go beyond 45. At least 45 though it is necessary. So that's why what we need to calculate the probability of x minus 45. Right? Correct? So what we'll do, we will normalize this. How we'll normalize? We will do it x minus mu by sigma.
is greater than equal to 45 minus, what is mu for D1? 40. And what is sigma? It is 6, right? So my this quantity evaluates to Z, Z, and it says 45. क्यों हो रहा है ऐसा? Yes. Okay, so it says 5 by 6. Okay, so now what will be my calculation here? So it will be Z less than equal to 5 by 6. That means if I do it with calculator, 5 by 6 value will turn out to be. 0.83. So I need to find, I'm doing it. So 0.83, right? Not working. Just so probability 83. Okay, guys, is any one of you here who is not able to get how to set the value? Is it my internet? It's Do not it working. 1 minus probability of Z. I think we are losing you in between, or is it my internet? Can someone? No, yes, Oh, is it? yes, you're Let me losing check. internet. Okay. Okay, okay, okay. Let me check. But Yash, why we have done probability of like x minus mu by sigma in this? This is for the Because this, it is told that in the question it is told that Maybe. it is we have a normal distribution. Check it, right? Okay, maybe I can help with the answer. Just correct me if I'm wrong. So yesterday we learned that for the normal distribution, it was supposed to be 0, comma 1, which is standard Mhm. way. But here we have given 40 and 36 and 45 and 9. This is not the standard normal distribution. So we have to standardize this. To do that, the x variable Yeah. we are going to normalize, and that will become z. From Okay. there, Okay. we'll use the z table and you'll get the value. Correct? Mhm. Correct. 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 Now got it. Yes, yes, absolutely right, absolutely right. Hey guys, is anyone recording it? Just to be sure. Harshal is recording, I guess. Well, are you recording, right? I there were ठीक है चलेगा. So I hope you are clear till here. 1 minus probability of p less than, like p of z less than 0.83, right? Yeah, फिर कोई yeah, तो जवाब दे that's दो. yes, yes. Okay, okay, okay. Great. So I'll directly then I will not be going into the Z table because you know how to see the value, and I'll directly put the answer here. And what is the answer for this? The answer for this is it is, yeah, it is 1 minus uh, what's wrong with the pen now? 0.7963. So I'll get point. I'll write it here down. If I guess my system is hanging due to overheating. Just a minute, guys. Oh, Just give me a minute. yeah, this will be 0.2037.
Okay, so the value I'll tell you the answer is 0.2005. 0.2005. That's what I got. That is the answer for first part, D1. Okay. Similarly, when you will find for D2, for D2, what are the set of values? So we need to find again probability of Z greater than equal to 45, right? And what we will do? Z nahi, sorry, X greater than equal to 45. 42 ना second वाला. नहीं मैम 45 ही रहेगा ना because we are testing against 45, अच्छा, okay, right? okay, okay. Right. So he's testing for the first part only abhi right now. Yes, yes. But So why if we Okay, X have not greater okay. than tested for Sorry, 40? Because the D1 was 40 and the variance was 36. So we haven't test for the 40. Yeah, so we did that only. We did test for the 40. If you are able to see the screen, 45 minus 40 by Yeah, 6. this is for 40 and now. Okay, okay. So this time. Yeah, so now we are doing it for 20 I'm losing Yash. Yes, we are losing. greater than Ajay. 45. Okay, okay, okay. Just give me a minute. Let me switch my network. So X greater than equal to 45 hai. Then 1 minus So guys, X less than are you 45 feeling will be. laggy into the screen sharing or my voice? In what are you facing this issue? We are losing you in between, and screen I think is a bit slow. ठीक है, this In question both. is Okay, straightforward. ये is तो it हो is it जाएगा better now? table में तो Is my voice better now? Z less than G plus Yes, it's fine. Hello, am I audible? Yes. Yeah. So is my voice better now than before? Yes, for now it's So for now it's fine. For now, it's fine. Okay, I'll check for my. Actually, I'm using two devices because I this trackpad is supported on Windows only. That's why. Anyways, okay, let's move ahead. Let me know if you are facing any issues further. Yeah, so So 45 minus 45 by 3. upon 3, yes, correct. So that will be probability of Z greater than equal to 0, right? So again, I need to do 1 minus probability of Z less than 0. Okay, yeah. 1 minus P. Array. What's happening in the system? Hmm. Sorry guys, my system is hanging a lot. I need to check it what exactly No, the it's issue is. okay. It's okay. Yash. कोई बात नहीं. I'm not able to write anything. My cursor is not going there. That's why. अच्छा अच्छा. It's It is okay. blocked. Maybe you want to restart it. हाँ हाँ Take, कोई take your दिक्कत time. नहीं. सब अपने ही लोग Yeah. हैं. So, okay. Let me do this one time. Please give me a minute, guys. Yeah, yeah. Take your time.
Okay, guys, let's start. Am I audible to you? Yep. Yes, sir. And screen is also visible? Yes. Yes, perfect. Okay, so let me cover this time very quick. So, what was asked? In second case, I guess we were able to deduce this till here. One minus probability of z less than zero, right? And again, for if we need to find for z less than zero, we will do it. Again, issue is coming. So this answer will come to be, I guess I'm facing the problem in the driver installation driver of this trackpad. So let's do this in this. Okay, I'll narrate you for now. This all questions, it will be easier for you to understand because It's okay. Don't get stressed. Just no, I'm not getting stressed. Actually, I'm not pretty sure what's happening with this trackpad today, but I'll try to cope up this with okay. this. Just give us some hints to solve the question, and we can move forward with the Uh-huh. concept. Yeah. That can be done. Okay, so for the D2, we will find the in the same way and we'll get it as 0.50. I've done this solution, but it's very rough. Other way around, I would have shared it to you. Uh, yep. Okay. मतलब Great. ना वो सॉल्यूशन जो दे रखे हैं ना हमारे एलएमएस पे उसमें Yes. भी सॉल्व कर नहीं रखे हैं ना हम लोगों ने अच्छे से मतलब कुछ के तो क्वेश्चन आंसर्स ही दे रखे हैं डायरेक्टली हाँ करेक्ट कुछ में हाँ उन्होंने तो ये प्रॉब्लम आ रहा है दैट उनके ओके डायरेक्ट आई गेस दे हैव डायरेक्टली पोस्टेड द आंसर और समथिंग बट इट्स हाँ ओके हाँ I'll make you understand that points. So हाँ okay, पहली बात तो did you got the understanding of how we are doing with this D1 distribution? ये वाला हाँ आंसर हाँ आपको सबका आ गया. This हाँ point हाँ 2005. Okay. Similarly for D2 we will do the same. We'll do D2 minus mu by sigma is greater than 45 minus 45 by 3. Okay, that will come out to be probability of z greater than 0, and again that will be 0.50. So what according to you, which one is more preferable, D1 or D2? What you conclude of it? D2 is more preferable I think Correct, D2 is more preferable. Reason being is because we are getting the probability of D2 as 0.500 and D1 as 0.2005. That's why the D2 will be more favorable. Got it? Yes, yes. Yes. Similarly, now there is one more question here, that if it is used for 42 hours, what is the probability, like of which one should be preferred? So you do not need to change anything. You just need to change for 45 to 42. So now your calculation, like you need to find probability of D1 greater than 42 and probability of D2 greater than 42. And in the same manner, when you will solve the question, you will get the answer. Yep, correct. Is it clear to you? Yes, all can you clear. repeat once again Yes, yes. once again Yeah, I'll repeat it, don't worry. So what I'm saying that for the first case right now, what we did D1 greater than 45, right? And we solved all these situations. Now it is given that it is used for 42 hours. So what we will do, we will do it for probability of D1 greater than 42 and we'll solve it accordingly. Will it work? ठीक है हाँ ठीक है अंडरस्टूड ठीक है So for the next question, it's asked, let X denote the length of time in an automobile battery will continue to crank an engine. Assume that X follows a normal distribution with mean 10 and variance 4. What is the probability that the battery will crank the engine
longer than 10 plus x minutes, given that it is still cranking at 10 minutes. Okay, so this question particularly is a conditional one. ठीक है, so इसको कैसे करेंगे? So first of all, it is given in the question that it follows a normal distribution. So I guess ये वाले question में सबको समझ में आ गया है that what type of distribution we will use. Correct? Yes. Okay. Point number 1 is clear. Great. Now it is given to us that mean is 10 and the variance is 4. That means the mean, we have mu is equal to 10 and sigma is equal to 2 under root of 4. Now it is asked that probability of x going more than 10 plus x. Why? Because it is saying it will take 10 plus x longer time. So what we are dealing with, probability of x, capital X, greater than 10 plus x. Given that x is greater than 10. If you see, let me check if my it is working so I can better explain you. Yeah, it's better if you can. Yeah, I'll try. Actually, the drivers are, I guess, outdated. That's why the fan is not able to link here. But okay, let's check it out. तो फर्स्ट इसमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करना पड़ेगा. Okay. I guess the question is visible to you. थोड़ा सा छोटा बट हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है. चल, अच्छा. अभी हमें क्या निकालना है? We need to find probability of x probability of capital X greater than 10 plus x, given that it is cranking for year, given that x is greater than 10. Okay, why it is given that x? Because it is saying that given that it is still cranking at 10th minute, that means it will go more after 10 minutes. That's why we are doing it for x greater than 10. And now how we are solving it? So it is very easy. Again, what we need to do, we just need to standardize this, right? So how will we standardizing this? We will do probability of x minus 2 by sigma greater than 10 plus x minus 10 by sigma is 2, right? And so, okay, intersection probability of x greater than 10 upon probability of x greater than 10. तो जैसा हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया ना फर्स्ट क्वांटिटी को, in the similar way we will standardize this and I'll share you what final answer I'm getting over here. So when we will standardize this, we will get probability of yes, so our final answer will be this. I'll tell you. Probability of z, मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा अभी that why did we get to this answer. Let me write the answer, otherwise it will stop again. ओके, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ. देखो हियर जब अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होता है ना, तो व्हाट वी विल डू, वी डू इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो इन दिस केस टेल मी वन थिंग. फर्स्ट वाला केस बोल रहा है कि समथिंग दैट इज मोर देन 10 प्लस एक्स, मतलब 10 में कुछ चीज ऐड ही हुई है, राइट? सो दिस इज द केस. Guys, are you able to see the screen? Can you confirm me? Yep. Yeah, we are able to see. So this is 10 plus x, right? Abhi something, what it's saying, it is greater than 10. So like, is it not a subset of this, right or not? Yes, if subset then intersection is 0. Yes. So it is not intersection is 0. Basically, it is what you can say. Thoda sa, let me So probability of occurring that is not existent. Is that so? No. It's like you are getting it in inverse way. So basically,
Okay, so it is given that probability of x is greater than 10 and small part is given probability of 10 plus x. So tell me one thing, जो फर्स्ट वाला केस है, जो आउटर केस है, उसमें हर वैल्यू 10 से बड़ी ही होगी, तो इट कैन गो फ्रॉम 10 टू इंफिनिटी, राइट? करेक्ट है? Yes, yes. एंड द सेकंड प्रोबेबिलिटी कैन गो फ्रॉम 10 प्लस x. तो इसको अगर हम देखेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस विल बी दिस, दोनों का इंटरसेक्शन विल बी दिस पार्ट. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर्ड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 plus x minus 10 by 2. इट्स 10 से 10 कट हो गया, तो इट इज x by 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन x by 2. एंड हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10, we will get probability of x greater than 10 minus 10 by sigma is 2. So basically we will get probability of z greater than 0. And what is probability of z greater than 0? We solve it right now. It is 0.05. Right? Correct? In the z table, in the previous question only, we found that probability of z less than 0 is 0.5. मैं आपको अगर if you want I can show it to you. एक बार दिखा देता हूँ. Distribution कैसे होता है. Z distribution. If you check here, what is the value of z at 0? You check here. It is 0.500, correct? Right? So this is how I deduce the value of z. So it is 0.5. So my answer will be what I told. My answer will be z greater than x by 2 and upon 1 by 2. Now in the question it is in the solution sheet he has taken the value as x equal to 2. I do not know how he took that value, because it is not given into the question that we need to take any value that is 2 or not. So I need to discuss that particular part with sir. But if we generalize it, this will be the final answer for this. Is the 11th question clear, or should I explain it once again? Anyways, I can go, don't worry. Yes, I think you need to explain it again. Okay, great. So I'll explain it to you again, guys. So see here, say ये चीज clear है आप लोगों को, probability of x greater than 10 plus x given x is greater than 10. Is this part clear to you? Can Yes. anyone acknowledge me? Yeah, this is clear. Yes, this is clear. Now we need to standardize this as Kalpit told. So what we will do, x minus mu by sigma is greater than 10 plus x minus mu. Mu is 10 and sigma is 2. So 10 plus x minus 10 by 2. That is 10 से 10 कट गया. That is x by 2. So we get z greater than x by 2, and below we will write the condition probability, जो कि condition में है, given condition है. So we are writing x greater than 10, and to calculate this x greater than 10 using z table we found that it is 1 by 2. ये सब लोगों को क्लियर है ना? अगर ये इशू आ रहा होगा ना तो आई विल फिक्स दिस ड्राइवर थिंग एंड मे बी टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली. या मुझे अभी भी समझ में प्रॉपरली आ नहीं रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप था उसके हाँ. बाद सेकंड में आगे वो आई अंडरस्टूड. थर्ड में क्या हुआ? थर्ड मतलब कौन सा? ये बोल रहे 1 by 2 वाला? हाँ, ये कैसे आया यार? देखो like we are getting z equals to 0, but how? z equal to 0 but how? ये है ना हमारा कंडीशन, ये दिया हुआ है x, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x greater than 10 given है. तो what I am doing, x minus mu by sigma greater than 10 minus 10 by sigma. So 10 minus 10 is 0. So that's why I am writing it as z greater than. Got it? अभी समझ में आया? आया. राहुल, am I audible? Yeah, you're audible. अब आ गया थोड़ा बहुत, but I think I need to revisit this again. Guys, am I audible to you? Yeah, you're Yes. audible. Hello. Yes, you are audible, loud and clear. You're audible, yes, loud and clear. Maybe we are not audible to him. Yeah, maybe there is an issue with internet connectivity. It isn't.
Yes, are we audible to you? What I would suggest is हाँ कि जैसे व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन राइट, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है बीच में ड्यू टू हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो थोड़ा कहीं पॉइंट मिस हो जाता है। ओके तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया है ना ट्यूटोरियल शीट में, जैसे फॉर एग्जांपल 15 16 इनके सॉल्यूशंस वगैरह नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, हाँ हाँ तो एक बार वो सॉल्व कर लेते हाँ हाँ और एग्जैक्टली है ना। मतलब आई एम ऑल्सो इनटू दैट इंट्यूशन ओनली बट माय ट्रैक पैड इज नॉट सपोर्टिंग मी, कुछ ड्राइवर का इशू है दैट्स व्हाई अभी मैं वही आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट हाउ टू, क्योंकि वो एक बार चलने लगा ना तो आई विल बी मूविंग इन वेरी फास्ट पेस एंड आई विल गेट इट कवर्ड। आई हैव दैट ड्राइवर विथ मी, जस्ट अ मिनट मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। इफ इट गेट रिजॉल्व्ड इन 10 मिनट्स देन इट इज ओके, अदर वे अराउंड मैं कुछ और पे सॉल्यूशन निकाल। एक और क्वेश्चन था मेरा, व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जब सॉल्व करते हो ना, हाउ डू यू पुल दोस वैल्यूज आउट, थोड़ा मुझे वो भी बताना। हाँ 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 आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट कि इफ यू से 0.5 dx यस लिमिट इज 1.5 to 1.6, तो हाउ डू यू पुल दैट आउट ओके ओके फ्रॉम द इंटीग्रेशन, थोड़ा मेरे को बताना। मतलब यू सब्ट्रैक्ट दैट b minus a, ओके बट हाउ डू यू डू दैट, देयर हाँ इज अ हाँ सेट, तो मुझे इस यश या पहले उसमें ना what you did is like p of x greater than 10 plus x हाँ given x is greater than 10, करेक्ट तो उसका आपने क्या लिखा लाइक p of x greater than 10 हाँ 10 मतलब plus दोनों का x, इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं हाँ उसमें। इंटरसेक्शन ऑफ p of x greater than 10, तो वो p of x greater than जो ऊपर वाला इंटरसेक्शन वाला है वो कहाँ गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक 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 चीज दूसरी चीज की सबसेट है, दैट्स व्हाई वो अच्छा सबसेट so वाला पार्ट है। okay, that inclusion is itself is a p union of both. यस 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 Okay, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि p of x greater than 10 plus x itself is the union of x greater than 10, I mean वो उसमें इंटरसेक्शन right, इंटरसेक्शन। got it, okay okay. यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है ना। यार बोला तो है, आई डू नॉट नो। अच्छा ठीक है। जस्ट गाइस आई एम टेकिंग 1 or 2 minutes ऑफ योर्स, मेरा एक बार ड्राइवर एक बार अच्छे से इंस्टॉल हो जाए तो आई गेस इट विल वर्क अगेन परफेक्टली। इट्स इंस्टॉलिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन टू यश, ये या इसमें इज द ट्यूटोरियल शीट एनफ, हाँ मतलब आई मीन इज दैट एनफ फॉर एग्जाम्स ऐसा। यार आई एम नॉट श्योर बट इतना मुझे पता है कि अगर ट्यूटोरियल शीट सारी हो गई ना तो वी विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वी आर एबल टू क्रैक मोर क्वेश्चंस, मतलब एक नॉलेज तो मिल ही जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो इवन आई एम नॉट श्योर दैट मैं कर पाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। हाँ, तो बिकॉज कोई भी क्वेश्चन का कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, हाँ कोई पैटर्न नहीं है, सबके सब एक दूसरे मतलब यूनिकनेस है। तो हर इट्स क्वेश्चन यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे जैसे मैच If कर रहा है। somebody is here like who is expert in ChatGPT 4 who can create the model and उसमें क्या हम ट्यूटोरियल शीट उसको फीड करते हैं उसके हिसाब से कुछ पैटर्न दिखाए हमें, ऐसा कुछ है कोई? Anyone is I mean expertise in this? मैं तो नहीं ऑनेस्ट मैं तो नहीं पता। अच्छा कोई I am good in mathematics, but not good with coding at that level right now. ओके ठीक है, देखते हैं हम कितना इसको कर पा रहे हैं आगे। एंड यश अगर नहीं चल रहा होगा ना, हाँ लाइक दिस इज माय सजेशन, अगर सब लोग ठीक है, लाइक वी हैव दैट सोल्यूशन शीट इटसेल्फ इन ट्यूटोरियल, यस 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 तो आप उसी को मतलब रिप्रेजेंट कर दो, जिसका सोल्यूशन है तो मतलब समझ जाएगा, हाँ हाँ बराबर और जिसका सोल्यूशन नहीं है वो फिर हम लोग जैसे आज तो मेरे को लग नहीं रहा कि हम लोग सारे कुछ कर पाएंगे बिकॉज क्वेश्चंस भी ज्यादा है, बराबर तो लाइक मे बी वो चीज पेंडिंग कल रख सकते हैं, बराबर बराबर है ना? बराबर। हाँ आई एग्री। ठीक है मैं यही करता हूँ, आपने जो सजेशन दिया इट विल बी मोर गुड। तो
I'll explain you that solutions that are provided into the tutorial sheet, and tomorrow I'll get a fix of this issue, or either I'll buy a new trackpad only and get this thing done. I'm sharing the screen. Tell me if you're able to see it. No, for now it's not there. Yep, it's coming up. Yep, it's coming up. Is it? Great. Yes. Yep. So let me open it. Yes. Are you able to see it? Guys, are you able to see this? Yep. Yes. Okay, great. So क्वेश्चन नंबर हम कौन सा डिस्कस करेंगे अभी? 12th वाला कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कहाँ पे दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ. 10, 9, 11, 15, 16, 17. 12 मिसिंग है आई गेस इसमें यश. 13 दिया हुआ है डायरेक्ट. हाँ 12 मिसिंग है, करेक्ट. ठीक है 13 कर लेते हैं और क्या. 12 वाले का मैं आपको फोटो भेज देता हूँ जो मैंने सॉल्यूशन किया है. आई गेस उससे काम हो जाएगा आपका. यस. I guess 12 तो सॉल्व ही नहीं करा है इस ट्यूटोरियल शीट में, मैंने देखा था शायद कोई तो मैं आपको क्वेश्चन था. Okay, I'm sharing that on the unofficial group. Please check. मैं काम कर देता हूँ आज, मैं आपको एटलीस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देता हूँ so that you do not go empty handed. आपका कुछ तो होगा. Okay. Can you see it on your group? I have on the group I have shared the solution for question. Yeah, received. Yeah. Yes, correct. Okay. Yeah. So let's go on to the question and let's try to dig this. So what is saying that in the office, in the claim office of a public service enterprise, it is known that the time that the employee takes to take a claim from a user is a random variable with exponential distribution with mean as 15. So देखो कौन सा distribution होगा? I guess you must have got it right till now, right? Exponential. Great. With mean as 15 minutes. If you arrive at 12 sharp to the claim and in that moment there is no queue, but the employee is taking a claim from a client, what is the probability that you must have to wait at least 5 minutes to talk to that employee? Correct? So what we need to do here, so हमारा formula, like you know into the exponential, it is x e to the power minus lambda x dx. Correct? Guys, are you following with me? थोड़ा सा issue आ सकता है, but I guess. Yes. हाँ. Yes. साथ हैं. Okay, so if you check the solution given on the group, I have written the formula of it as x e to the power minus lambda x dx. Correct? And yesterday, if you like open your notes, I've shown you that there will be one formula 1 minus e to the power minus lambda x that I'll bring it after integration. That will be very useful, right? So we can use it directly here. So पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमें दिया है कि mean is 15 minutes and what is the lambda with respect to mean in this? 1. Yeah. So basically lambda equal to 1 by mu. So lambda equal to 1 by 15. So just we will directly integrate 5 and 15 here. So what will be 1 minus e to the power minus lambda, that is minus 1 by 15 into x is 5. So that will be 1 minus e to the power minus 1 by 3. And hence we will get it 0.2835. Got it? Yeah, got it. सब लोगों को समझ में आ गया? बस इतना सा ही है solution 12. हाँ, इतना सा नहीं दिया उन्होंने. Okay, great. अभी 13th वाला question is same as this. It says, suppose that the number of kilometer that an automobile travels before its battery runs out of is distributed exponentially. यार exponentially पढ़ते ही अब समझ में आ जाएगा कि कौन सा distribution है. Okay, and mean value is 1 lakh kilometer. If a person wants to travel 5,000 kilometer, what is the probability that a person finishes his trip without having to change his battery? अच्छा, अभी आप लोगों मुझे ये इनपुट बताइए
कि मैं x लेस देन 5000 लूं या x ग्रेटर देन 5000 लूं यहाँ पे। ग्रेटर देन। करेक्ट, बाकी सब एग्री कर रहे हैं या समवन हैज डिफरेंट ओपिनियन इन हियर? ओके, सो ग्रेटर देन ही लेंगे क्योंकि 5000 तो वो किलोमीटर तो कवर करना ही है ना उससे कम से कम, तभी तो उसकी ट्रिप कंप्लीट होगी। और वही पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन फिनिशेस हिज ट्रिप, दैट्स व्हाई विल टेक दैट x ग्रेटर देन 5000। एंड सिमिलरली विल सॉल्व दिस फार्मूला 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू 5000। तो लैम्डा हमारा हो गया 1/1 लाख एंड हमारा जो x गिवन है दैट इज 5000। सो डायरेक्टली कैन वी कम टू दिस कंक्लूजन? Into this sheet, if you are able to see this 13th question. Yes, yes. यस, एक और चीज थी, जैसे e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू 5000 है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कोई कैलकुलेटर में, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे इसे। तो बेसिकली हमारे, हाँ मैं आपको बताता हूँ, आपके पास केसीओ का है क्या कैलकुलेटर? हाँ कैसीओ का ही है। इस केसीओ का ही, तो आप केसीओ में अगर आप देखेंगे मेरा 911 ms है, 991 ms बेसिकली केसीओ का। अच्छा, बट कैसे करेंगे उसमें हम? तो हाँ, तो इसमें आप कैलकुलेटर में आपको ऑप्शन, मतलब कैलकुलेटर में देयर इज अ फंक्शनलिटी टू फाइंड e टू द पावर समथिंग। आपको लॉग दिख रहा है उसके अंदर, आपके कैलकुलेटर के अंदर? वो मैंने कर लिया, e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू आपने जो बताई थी 2.718 वो डाल दी थी इनटू 5000। नहीं, लैम्डा की वैल्यू तो ये 1 लाख लीजिए आप, 1/1 लाख। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट है, इनटू 5000। अच्छा, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन में गिवन है कि x ग्रेटर देन 5000, और हम कभी भी ग्रेटर देन में नहीं जाते, हम हमेशा लेस देन में चेक करते, राइट? दैट्स व्हाई वी विल डू इट 1 माइनस p, ये जो लिखा है कैसा हाईलाइट हाँ वो समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया, करेक्ट। तो ये कैसे आएगा, मैं आपको इसका फोटो भेज देता हूँ अगेन टू मेक यू एक्सप्लेन, टू मेक यू अंडरस्टैंड, सॉरी। ठीक है, प्लीज चेक इट ऑन ग्रुप, आई हैव शेयर्ड इट। यश, इसमें हमने p x ग्रेटर देन 5000 लिया, इसका मतलब थोड़ा लॉजिक बताओगे क्या है? वैसे तो ठीक है, समझ में आ गया मैथमेटिकली, बट लॉजिक क्या है इसका? देखो, लॉजिक इसका ये है कि आपसे पूछा गया है, देखो आप अगर ये समझ पाए ना कि व्हाट इज आस्क्ड, देन योर लॉजिक इज कंप्लीटेड। यहाँ पे ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फिनिशेस हिज ट्रिप। अभी ट्रिप फिनिश कब होगा? जब उसका 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रैवल ही 5000 करना है ना। अब एक बात बताओ, 5000 से अगर कम ट्रैवल हुआ, 5000 से 1 किलोमीटर भी कम हुआ, तो उसका ट्रिप कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 5000 से या 5000 से ज्यादा ही होना चाहिए अपनी बैटरी की एक्सपेंडेंसी, तभी तो हमारा काम होगा। दैट्स व्हाई हम उसको ग्रेटर देन 5000 ले रहे हैं। यश, इसका फॉर्मूला क्या था? fx इक्वल्स टू लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। यस, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x। एंड जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो ना, बिकॉज़ वी नीड टू इंटीग्रेट इट फॉर टू गेट द लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो वो यही आता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। तो इस केस में क्या है? सॉरी, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। हाँ, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ओके, इंटीग्रेट करने के बाद। यप। अभी देखो, ये जो 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x मैंने आपको बताया ना, ये तभी वर्क करेगा जब हमारा x लेस देन समथिंग होगा। ग्रेटर देन वाले में हमें उसका नेगेशन करना पड़ेगा, राइट? इसलिए आप जब ये आपको सॉल्यूशन शीट अगर दिख रहा होगा, तो इसमें जो देयरफॉर वाली कंडीशन है लास्ट में, उन्होंने इसलिए x ग्रेटर देन 5000 को 1 माइनस x लेस देन 5000 लिखा है, राइट? गॉट इट, ताकि हम ये x लेस देन 5000 को 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x, तो वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड बस हमारे पास बचेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, एंड दिस विल कम टू द आंसर ऑफ 0.95। गॉट इट। यही समझ नहीं आ रहा था। ओके, सब लोगों को समझ में आ गया 13th वाला? आफ्टर इंटीग्रल, other guys, are you able to follow up? Yes, I'm going through. Yeah, all okay. All of them, great। चलो ठीक है, अब 14th वाले क्वेश्चन में what we need to do, देखो अभी क्वेश्चन को समझेंगे, है ना? क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्यूशन इज वेरी इजी, क्योंकि फॉर्मूला पता है।
वो बोल रहा है the time that has elapsed between the call to an office has an exponential distribution with mean between the call of 15 minutes. तो exponential पकड़ लो और mean पकड़ लो. तो exponential से हमको समझ में आ गया कि हमारा क्या फॉर्मूला बैठेगा, and mean से हमें समझ में आ जाएगा कि what will be the value of lambda. So lambda will be 1/15. Am I clear till here? Yes. Yes, perfect. Abhi it is asked that what is the probability that no call have been received in a 30-minute period of time. करेक्ट है, मतलब हम भी 30 मिनट हो चुके हैं और अभी तक एक भी कॉल नहीं आया है. ठीक है, तो व्हाट वी विल नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा That should be प्रोबेबिलिटी ऑफ x x greater than 30. तो उसके लिए सिर्फ सिंपल वही 1 माइनस करके निकालेंगे. एग्जैक्टली 1 माइनस x लेस देन 30, वही 1 माइनस तो आपका हो जाएगा e टू द e to the पावर power माइनस minus lambda into lambda into x. तो बेसिकली e टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा वो. जहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हमें उसको 1 माइनस कर देना है, राइट? हाँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला ये है, कोई सा भी मैडम हम कोई सा भी देखेंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम यूजुअली लोअर लिमिट पे लेके जाते हैं, अपर लिमिट पे नहीं जाते हैं. ओके, जब हम ये भी करते हैं, जब z डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो वी डू लेस देन x लेस देन समथिंग, नॉट x ग्रेटर देन समथिंग. तो दिस इज अ जनरलाइज्ड थिंग, यू कैन डू इट एनीवेयर. ओके, got it. अभी सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ रिसीविंग एट लीस्ट वन कॉल इन द इंटरवल ऑफ 10 मिनट. मतलब क्या, 0 से लेके 10 मिनट में एक कॉल आ जाए, तो वही हम निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10. करेक्ट है? करेक्ट. तो डायरेक्ट 1 माइनस डायरेक्ट, अभी ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट 1 माइनस e टू द पावर माइनस lambda x. 15, सिंपल. ओके, अभी थर्ड वाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल बिटवीन 5 to 10 मिनट. तो भैया इंटरवल ही दे दिया उसने, दैट वी नीड टू गो फ्रॉम 5 मिनट to 10 मिनट. सो यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज लाइंग बिटवीन 5 to 10. तो अभी देखो, मैंने आपको अगर याद होगा कल एक चीज बताई थी, एक मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हम माइनस इन्फिनिटी टू b लेंगे और माइनस इन्फिनिटी टू a लेंगे. डू यू रिमेम्बर दैट? करेक्ट. और वो माइनस करा था आपने. करेक्ट. सॉल्यूशन शीट में वही किया है, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10 ले लो और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 करोगे तो आपका 5 से 10 के बीच में आ जाएगा. हाँ, मतलब 0 से 10 तक निकाला और 5 वाला 0 से 5 वाला हटा दिया. करेक्ट, हटा, समझ गए? तो 14th वाला भी हो जाएगा आपसे. यस. अभी 15th वाले का है ना, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि 15th वाले का इन्होंने सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर दे दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया है. ओके, तो मैं काम करता हूँ, है ना, मैं काम करता हूँ, आप लोगों को एक चैट पे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ. ये आप इसको आप अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको ये जो हम क्वेश्चन आगे के करेंगे ना, ये जो भी है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको लाइन से क्लियर हो जाएंगे. ओके, ठीक तो है. मैं यूट्यूब की आपको प्लेलिस्ट दे देता हूँ. गजेंद्र पुरोहित. अच्छा. या हाँ, मैंने मैट्रिक्स पढ़ा था. हाँ वही, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी. आई थिंक ये बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है यार. हाँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा है. मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये. हाँ, भेज दो आप. इसमें सारे देखने क्या, ये तो बड़ा प्लेलिस्ट होगा. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपको सिंगल ही भेज रहा हूँ. हाँ, ये देखो, एक ही आपको मैं पार्ट 1 भेज रहा हूँ, है ना, ये पार्ट 1 है, एंड नीचे वाला पार्ट 2 भेज रहा हूँ. ये 2 करेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे मैक्सिमम कवर. आप इसमें डाल दो ना, ये व्हाट्सएप पे. ठीक है, ऑफिशियल में डाल देता हूँ तो कि सब लोगों को मिल जाए. इससे क्या सारे क्वेश्चन रहेंगे बाकी वाले? हाँ, नहीं, सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे मैम, थोड़ा बट सारे understanding क्वेश्चन build के लिए होगा. कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको कि मुझे करना क्या है. बिकॉज मैं भी उसी स्टेज पे था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इसका ट्यूटोरियल देखा, क्वेश्चंस देखे, समझे और मेरे को क्वेश्चंस बनने लगे, तो आई गॉट सम कॉन्फिडेंस. एंड नहीं बनेंगे तो आई एम देयर, अभी कोई दिक्कत नहीं. इमर्शन में भी हम 10 दिन है तो यही करने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, वन मोर थिंग, इमर्शन के कौन से दिन एग्जाम है? लास्ट दिन, लास्ट 2 डेज. 15 दिन में बहुत हो जाएगा कवर, बहुत ज्यादा. लास्ट 2 डेज है और बैक टू बैक एग्जाम्स है. हाँ, हाँ, 10 से 16 है. हाँ, फर्स्ट डे पे 2 पेपर है, लास्ट डे पे शायद 3 है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. मतलब टाइम है हमारे पास. है बहुत ज्यादा टाइम है. उतने टाइम में तो ये पूरा मैथ्स पढ़ा देगा. अरे बहुत नहीं, मैं अभी मैथ्स करके जा रहा हूँ ताकि वो 10 दिन में बाकी सब्जेक्ट्स कर लूँ, क्योंकि मैथ्स ही सबसे ज्यादा लेंथी और टाइम टेकिंग है, दैट्स व्हाई. अच्छा, मैथ्स करने के बाद थोड़ा डीएसपी प्रिपेयर हो रहा है ना, डेटा साइंस? हाँ, 70%.
अच्छा, उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, मतलब क्या-क्या टॉपिक ज़्यादा है डीएस में, वो थोड़ा बताना डेटा साइंस में। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा? ठीक है, मैं एक बार आपको ये शेयर कर दूं। अभी आज तो मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो मैं ये आपके डाउट यही वाले अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। है ना? हाँ, ताकि अपना टाइम यूजफुल रहे इसलिए। क्योंकि कितना परसेंट कवर हुआ है अभी अपना ये पढ़ने के बाद, बिकॉज़ हाँ, आई सी डिस्ट्रीब्यूशंस उसमें भी हैं एंड प्रोबेबिलिटी जेड जी स्कोर ये सब वहाँ भी यस यस कैलकुलेट कर रहे थे। यस। जस्ट अ मिनट, मैं आपको वो दूसरा वाला शीट दे दूं, फिर मैं आपको वो सब बता देता हूँ। कॉपी एंड पेस्टेड। डेटा साइंस बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको दोनों शेयर कर दिया है। हाँ, आप बात कर लेते हैं अपन इसके डेटा साइंस के और इनकी। तो मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास पूरा इसका वो है डॉक्यूमेंट्स। आईआईटी जोधपुर, यस। सेव क्वेश्चन गाइस, मैथ्स यस, कोर्स करिकुलम। ओके, ये रहा फंडामेंटल और डेटा साइंस। ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? वी कैन Yes. सी। So in this, the first part that is not in mathematics, that is EDA, and that is quite easy part. उसमें कुछ टफ नहीं है, theoretically है। अगर हम लोगों ने मिलके 1 घंटा भी दे दिया ये पार्ट में, तो हम पूरा स्कोर कर सकते हैं। ओके, देन गोइंग ऑन दी सेकंड केस, ये तो नहीं पढ़ाया हमें। केस स्टडी, मतलब केस स्टडी मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछी जाएगी। देन कमिंग टू दी दिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ये सब कुछ हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद कहाँ पे है, ये रहा। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि हम मेनली मंडे को नहीं, मंडे को एस्टिमेशन थ्योरी पढ़ेंगे, मंडे और ट्यूसडे को। वेडनेसडे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे अपन। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो यहाँ पे है वही वहाँ पर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हाँ ये भी बहुत, हो जाएगा, हाँ ये राइट। इजी भी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाँ, इजी भी है, राइट, क्योंकि उसमें सेम पैटर्न है। अच्छी बात तो ये है हाँ कि एक ही पैटर्न है, दैट इज द यूएसपी ऑफ इट। तो बस उसके बाद क्या बचा, मतलब सर ने, मुझे याद भी नहीं उसके अलावा कुछ अपने को ऐसा पढ़ाया जो अपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा। एंड मतलब अगेन बस ये इंडस्ट्री ये पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेशन ही है। बस ये एडवांस एसक्यूएल जो है, ये भी अगर एसक्यूएल से मैच कर गया तो अपना लकी हो जाएगा काम, राइट। तो डेटा साइंस 70% तो कवर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड पाइथन के कोर्स में आई डोंट सी वो नंबर सिस्टम है क्या उसमें? है ना, है वो, वही बिट मैनिपुलेशन है उसमें? तो उन्होंने इतना पढ़ाया है अपने को। ये रहा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये रहा पहला ऑर्डिनल। इंट्रोडक्शन में वो सब है। भाई इंट्रोडक्शन में इतना बता दिया उन्होंने। एंड सेकंड में भी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इंटीजर, फिक्स्ड, फ्लोटिंग। एंड देखो, एक बात है, जो फैकल्टी ने पढ़ाया वो सिलेबस का पार्ट है, वो पहले यहाँ पे लिखा नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उनसे कैसे लड़ेंगे इस चीज को लेके। वो तो बोलेंगे मैंने पढ़ाया था, बात खत्म। तो ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया वो तो देख लेना। ये तो आशुतोष हैंडल कर लेंगे, ये वाला पार्ट पाइथन का तो नहीं टेंशन है। अभी देखो, मेरा प्लान ऑफ एक्शन कैसा है, इफ आई शेयर इट विथ यू। अभी आज अपना फ्राइडे है ना। कल और परसों में अगर मैं ये वाला शीट और ट्यूटोरियल शीट 3 भी कंप्लीट कर दूंगा, राइट, तो डेफिनेटली मंडे से हम एस्टिमेशन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मंडे को कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, प्लस आधी शीट, मतलब 1/4 शीट करेंगे, एंड ट्यूसडे को हमारी पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ ट्यूटोरियल शीट, दिखा देता हूँ मतलब कि कितने क्वेश्चन है उसमें। ये यार एक चीज यश, अगर जैसे जो तुमने ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करवाई है और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, ये इनफ रहेगा हमारे उसके लिए? मैम, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इनफ होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इनका लिमिट क्या है। तो पहली एग्जाम है, तो इवन आई एम ऑन द सेम थॉट एज योर्स, मेरे पास कुछ भी एडिशनल बस मुझे ये बता दो कि जो तुमने नोट्स बनाए हैं मैथ्स के, वो सारे कवर हो रहे हैं ना इसमें? हाँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो डैम श्योर कवर हो रहा है। मतलब तो बस वही 90% तो कवर हो रहा है। 10% में खुद मार्जिन ऑफ एरर लेके चलता हूँ, क्योंकि सुबह की क्लास रहती है और उनकी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए। आई एम अमेज्ड कि तुम नोट्स भी कैसे बना लेते हो यार, उनकी क्लास में हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आती मुझे तो। कोई बात नहीं। आगे यश वो वही, खोलो ना, ये सीक्वल में हो आप, हाँ ओपन दी वही मैथ्स। ओपन कर रहा हूँ, वही ओपन कर रहा हूँ।
मैथमेटिक्स का करना है ना ओपन? हाँ मैथ्स एस्टिमेशन थ्योरी खोल के भी नहीं देखा है ये बार। यस, ये रहा एस्टिमेशन थ्योरी, राइट? तो हमारे एस्टिमेशन थ्योरी में ना सिर्फ 9 क्वेश्चन है हमारे पास, एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर ऑन 4 कॉन्सेप्ट बेसिकली, बस 4 ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे 9 क्वेश्चंस है। तो अगर कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हो गया तो ये 9 के 18 क्वेश्चंस भी अपने सब सही हो जाएंगे। ये तो सारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ये तो मतलब इंटरेस्टिंग भी है, हाँ, प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग भी, करेक्ट। इनमें ना वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ। इनमें ये है कि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये बाइनरी देता है आंसर, 0 हाँ या 1 बस, हाँ ऐसा। बस वही चीज है। हाँ, ट्यूटोरियल और इसके शायद प्रॉब्लम्स, हाँ ये प्रॉब्लम्स हो गया। ट्यूटोरियल शीट 5 भी बहुत अच्छी है क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, सबका फेवरेट हो गया है वो जब से सर ने पढ़ाया है, गौरव सर ने। तो इसमें भी ठीक है, भले 21 क्वेश्चन है बट बहुत जल्दी आपसे हो जाएंगे ये सारे। हाँ वो सारे थोड़े मिलते जुलते हैं, पैटर्न है इसमें। भाई एंड अगेन प्रॉब्लम शीट 6 भी बहुत इजी है, मैट्रिक्स वाली बहुत। नहीं, ये तो मैंने कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ लिए थे क्योंकि वहाँ यार लिखा था कि कुछ मैट्रिक्स करके तो आना। मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लीनियर ये सब भूल गई हूँ, गॉसियन एलिमेंट। मैट्रिक्स वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। देखो एक बात तो है ये भले ही आपसे आज नहीं हुआ ना, मैं इस बात का मुझे पता है कि जो चीज ऐसी लग रही है ना कि यार मैं पक्का भूल जाऊंगा, उसको अपन एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे वापस, ताकि वो हाथों हाथ याद रहे और हम वही इम्प्लीमेंट करके। यार 140 बच्चे होंगे कौन किससे क्या तो कुछ प्रिपरेशन तो घर से करके ही आनी होगी। करे घर से करके आना और थोड़े नोट्स बना के लाना ताकि वहाँ रिवीजन हो सके। हाँ वही, और क्या अभी अब 140 है बट अभी भी देखो ना मैम, 140 आर नॉट ऑल आर इंटरेस्टेड विद एवरीथिंग, सब अपने हिसाब से उसको अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो हाँ जिनको जरूरत रहेगी वो डेफिनेटली आएंगे, जिनको नहीं रहेगी वो डेफिनेटली नहीं आएंगे, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो भी है। That is the thing. So I'm not looking for 140, I'm looking for some people. ठीक है, चलो गाइस, आई विल ड्रॉप ऑफ, मैं Yep, कुछ I'm और also पढ़ लूंगा। dropping off. ठीक है, Sorry guys, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। नहीं, I'll अरे try नहीं to नहीं, बट manage it स्टिल इट tomorrow. इज प्रोडक्टिव it's good, you यार, are investigating थोड़ा now. कॉन्फिडेंस थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं। Yes, thank you. थैंक यू सो मच। यश मैंने कल यश हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। संदीप हियर। हाँ बोलिए हाँ मैं संदीप। बोल रहा था कि कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो हाँ। उसका रिकॉर्डिंग है ना? हाँ है, कल का क्लास मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। प्रसन्ना से पूछ लीजिएगा, he'll give you. नहीं वो ग्रुप में डाला है, मैंने देखा है, ठीक क्योंकि कल मैं भी अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज पूरी वीडियो देखी थी कल की, तो वो डाली हुई है सब डे 1 डे 2 डे 3 के अकॉर्डिंग, ऐसे पूरा अच्छे से डाल रखी है। ठीक है संदीप, क्लियर है आपको ये? हाँ क्लियर। चलो ओके, थैंक यू गाइस। हमारा इमर्जन का जो डेट्स है वीडियो देखते हैं फिर